generations, and without proper generations there won't be any change in the future generations. And to do that, to bring that particular change, we started Ikigai. But while I was in the journey to teach parents, there was a big problem, big question which everybody asked me. Can anyone guess what was that question? Any guesses? What could be a question to teach parents? Alright, mental health. What else could be the question? Any guesses? You could be random, you could have some fun as well. So give some answers. They asked me, are you a father? I failed to answer it. And that's when the biggest transformation of Ikigai came into existence. I was not a parent, so I cannot teach parents. Alright. And then the journey of getting into students' life and seeing the change can, it can come from inside out. You really need not change parents to change students, but you can change students so that parents change. And that's the concept we're trying to change around, work around, really focus around, right? This journey, it started and it took many transformations, right? We started with parents, we got into children, we got into students, we taught them, we changed their life. How, when I say we changed their life, they are now mentally stable, they are physically fit, they are emotionally stable. I mean, they don't get angry easily, they don't get upset in every now and then. They are stable. And when we have a stable life, it's about stability, right? You need not be everything high and you have lows around. Actually, life goes as low and high, and you need stability with everything, your relations, your bonds, your friendships, your studies, your economic, your financial stability. Everything seeks stability. Gotcha. So this process, this journey, it just started, but it brought us a lot of change. I tell you, I didn't start Ikigai to earn. I didn't want it to be the richest guy of India, but I would really say that the morals, the ethics, the laws, what we built, they brought to me so much that I am self-stable. I mean, I'm also a student, just like you. Might be a senior. Quite early I got into engineering, but we are same. I mean, we all can relate each other. So when I can do this, why can't we all do this, right? And we can do this today. This session is all about it. You have enormous potential inside you, talent. You can build the empires which history could ever see, the best, and you could mark yourself in the form in the history. But for that, there are some things you got to focus on. There are some really important things which you got to work on. There are some principles which you got to build, and there are some problems, some beliefs what you already brought into should be deleted, right? So what is the process of deleting? Sure, sure. Thank you. So what is the process of deleting a file from computer? Can anybody tell me? Right click and then delete. Okay. Control delete. Great. All right. So yeah, these are right. And when you do this, you just have to do one thing from today, from the start of the session. There are some beliefs in your lives which got to be deleted. The number one belief is impossible. I can't do this, or this is मुश्किल है, या फिर मुमकिन है, या फिर नहीं हो सकता. ये सब चीज़ें नहीं है. हर इंसान. Okay. Hello. Am I audible? Clear? Yes, sir. Yep, thank you. So हर इंसान के पास इतनी काबिलियत खुदरत के पास से आई है कि आप उसका इस्तेमाल करे बगैर दुनिया से नहीं जा सकते. पहली बात तो आप अपने आप को अहम जानते हैं. डू यू फाइंड योर सेल्फ इम्पोर्टेंट? वाई डू यू फाइंड योर सेल्फ इम्पोर्टेंट? थोड़ी अच्छे से आंसर चाहिए. क्यों चाहिए आपको इम्पोर्टेंट? आप क्यों इम्पोर्टेंट हैं, इसका सवाल दें. क्या लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है हम सब? क्योंकि हमें ए ग्रेड्स आते हैं, या फिर हम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारे कार्स हैं, बहुत फैंसी चीज़ें हैं जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं. क्यों इम्पोर्टेंट है आप सब बताएं.
क्योंकि आप ISL कॉलेज में पढ़ रहे हैं. वेरी गुड. बट बताएं और क्या हो सकता है कि आप why do you find yourself important? जी, you believe in yourself, great, but important or belief important you have. Why are you so special? That is what I'm trying to ask. You believe in yourself, great job, but why are you important? Self-obsessed. Ji? Pardon? Louder? No worries. Come on, give it a try. Self-obsession? Acha ji, okay. What else? You want to do something in your life? Great, great, great. All right. फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्या बात है, बढ़िया. अच्छा जी, और कुछ, और कोई चीज़ ऐसी जो आपको अहम, अपने आप को अहम महसूस करवाती है? गॉड क्रिएटेड अस. क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट. व्हाट एल्स? थिंकिंग एबिलिटी, ज़बरदस्त, सही है. और व्हाट एल्स? क्या हो सकता है? डिस्कवरी. आगे आगे आगे. डिस्कवरी क्या? What discovery? To do something? Acha, differently. Acha, okay. What else? Do something which has never been done. Great. What else? Great answers, great answers. This time ISL got great crowd here. All right. So your all answers are right. I appreciate those who tried giving their answers. I would really say that आप इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी ने जवाब, एक अच्छा सा जवाब दिया था कि यू हैव द एबिलिटी टू थिंक. सोचने की सलाहियत है आपके पास. ये जानवरों के पास नहीं है. ये सारी दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब के पास नहीं है, आपके पास है. यू हैव द एबिलिटी टू चूज. एंड व्हेन यू नो टू चूज एंड व्हेन यू फाइंड, when you have the capability to choose the right thing, that's when change happens. Right? So making the best choices in life makes you the greatest, the special. You are special because you can choose. If you cannot choose, if you were not given an ability to choose, तो फिर वही बात हो गई कि गाड़ी जैसे चल रहे हैं, बस पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है, हम भरते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है ना. You're just giving it, right? And it's going on, going on, going on to the destiny. But we are not cars, we are not automobiles, right? We are humans. We got potential to choose. सही कह रहा हूँ? Relatable? Little louder? Great job. All right. So, what Ikigai does to your life and why actually you have to listen to me. Okay. I'll tell you. I brought up 2 companies. In a couple of years, which are doing great. We have around 30 to 50 employees working under us. I know the count is less, but we're growing every day. And coming to Ikigai, we have spread all around the country. 29 states, we got people working for us day and night, serving. And it's not that they are being so much paid, that is why they're doing this, but they know the purpose of this organization. We are on a mission. We don't have a goal to achieve 1 million, we really don't have a goal to have $1 million at our pockets. No, that's not our target. Our target is we bring impact in the people's life from the same country we belong to. And we want to do something that would be remembered for, it should not be there for a year, it should not be there for a couple of years, but it should last lifelong, that this people brought impact in people's life. And that's the change we're trying to bring. Now, everybody have some goals. Do you all have goals? I mean, any goals in your life? Can I have some? If you could share me a few of them. Your goals, what are your goals? Now, short term, long term, whatever it is. What are your goals? To score excellent in your examinations, to pass all your exams might be a goal, right? Yeah, sure. No, sir? Okay. So might be a short-term goal, and long-term goals could be, you could settle down in a good company, have great job, and the cars you dream. But yes, sir. Yes, sir, please. Entrepreneur, appreciate that. Great. Please give a big round of applause to him. Want to be an entrepreneur. Great.
So what are your other people like? Can we have some other goals, some big dreams? So small भी है तो बता दें, मसला नहीं है, बताए तो सही। गोल्स ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, डाटा एनालिटिक्स सही है अभी, बढ़िया। और व्हाट आर सम अदर ग्रेट गोल्स यू हैव? जी जी। To be successful enough that my parents are proud of me. To be successful, oh big round of applause please। बहुत बढ़िया, थोड़ा louder please, एक बार सुन ले सब। To be successful enough that my parents would be proud of me. क्या बात है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। Alright, so any other goals we have? Somebody wish to share? बहुत private है क्या goals? बता नहीं रहे। अच्छा चलिए कोई नहीं। So you have to remember every short thing, every small thing, every action you take today will bring an impact for you tomorrow. आज आप एक पेज पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो एक पेज से, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एकेडमिकल बुक्स पढ़ें, ठीक है, मेरी तो बहुत ख्वाहिश होती है, मेरी सबसे गुजारिश होती है कि जनाब आप सब किताबें पढ़ें जो होंगे बाहर के, यानी जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। यार ये गोरे हैं ना, ये बहुत आगे हैं हमसे। ये इसलिए आगे नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें बहुत लूट के गए हैं या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्मरानी की है। ये इसलिए आगे हैं क्योंकि ये पढ़ते हैं। और जब आप पूरी दुनिया में राज करते थे तो तब आप भी पढ़ते थे, बस फ़र्क इतना है हमने पढ़ना छोड़ दिया। We stop reading and we are into this world of social media जहाँ पे इतना कम फोकस स्पैम है कि जनाब एक बात समझ नहीं आ रही, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील्स खोल लिए, नीचे जाए जा रहे हैं, डोपामिन के साथ खेल रहे हैं। आपको पता है डोपामिन क्या है? कोई जानता है डोपामिन क्या होता है? इट्स अ हार्मोन। अच्छा, क्या करता है ये हार्मोन? बढ़िया, सही है। अच्छा जी, तो प्लेजर का हार्मोन है। आप बताएं, आपको हर रील के साथ प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, आपको मतलब इतना ज़्यादा डोपामिन आप रिलीज़ कर रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये क्या कर रहा है। जो सोशल मीडिया है ये बहुत बेहतरीन तरीका है बर्बादी का। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, इफ़ यू यूज़ इट इन द राइट वे, आई एश्योर यू कि भाई यू विल बी द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि करना क्या है लाइफ में। बस चले जा रहे हैं, 12th हो गया, ठीक है, फिर इंजीनियरिंग आ गई, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर मास्टर्स करेंगे, कोई बाहर चले जाएगा, कोई जॉब में लग जाएगा, यही हो रहा है, सब भाग रहे हैं। भागना नहीं है यार, ऐसा कुछ करो ना कि लोग आपके पीछे भागे हैं। आप ही भागे जा रहे हो, लोगों को फॉलो करे जा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। And are you doing justice to the talent which God gave you, inbuilt in you, which is from the day you were born? आप justice कर रहे हैं अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनके एफर्ट्स के साथ, आपके अंदर जो सलाहियत है उसके साथ। ये सारी चीज़ें अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, आप नहीं समझेंगे कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, व्हाट इज़ माई मिशन, व्हाट इज़ माई विजन, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, देन अगर आप ये सब नहीं सोच रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं? मेरा दोस्त क्या सोच रहा है? मेरे एग्ज़ाम्स कब आ रहे हैं? हाँ जी, एग्ज़ाम्स आएंगे तो फिर एग्ज़ाम्स में लग जाओगे, फिर पढ़ाई फिर भागोगे, फिर भागते भागते फिर रुकोगे, फिर एक नया सेमेस्टर आएगा, फिर भागोगे, फिर रुकोगे, बस यही चलना है। अपनी लाइफ के साथ इतना बुरी तरीके से मत खेलो कि वापस आ ना सको। लौटता नहीं है टाइम चलता है, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल करो तो आगे जाओगे, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आपके सामने बर्बादी के बहुत सारी मिसाल हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत बुनियादी स्टेप, वेरी फंडामेंटल स्टेप टू ब्रिंग चेंज विद इन योरसेल्फ, और ये सब आप मेजर कर सकते हैं, ये आपको दिखेगा, आप पॉसिबली अपने अंदर वो चीज़ ला सकेंगे। अच्छा, ये सिर्फ आपको नहीं दिखेगा, हर किसी को दिखेगा। आप जब चलेंगे तो आपके आसपास महसूस होगा, यू विल रिलेट, पीपल विल रिलेट दैट भाई इंडिया का फ्यूचर जा रहा है वहाँ से।
आप जब बात करेंगे आपका रवैया बदल जाएगा, आपकी आंखें चमकने लगते हैं। मैं बता रहा हूं ये, आई हैव सीन दिस, आई हैव बीन इनटू स्टूडेंट्स हु वर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ, वी हैव वर्क विद देम। और इकिगाई यही करता है ना कि हम जुड़ते हैं बच्चों से, उनके साथ ढूंढते हैं कि भाई आप करना क्या चाहते हो, और जब आप महसूस करें, मालूम कर लें कि करना ये है, फिर आपको पता चलेगा, जादू होना शुरू हो जाता है। यू विल फाइंड एवरीथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू। आपका जो विजन है, आपका जो एम है, हर चीज, पूरी कायनात उसके पीछे लग जाएगी कि आपको वो काम करवाएं। बट उससे पहले आपको मालूम तो होना चाहिए कि जाना कहाँ है, करना क्या है। पहले आप कौन हैं? आप सुपीरियर बीइंग है। अरबिक का एक वर्ड है अशरफुल मखलूकात, जानते हैं मतलब क्या है इसका? हाँ जी बताएं। बेहतरीन, अच्छा क्या बता रहे हैं? सबसे ऊपर, बढ़िया। तो आपको जब अशरफुल मखलूकात का ओहदा दिया गया था, इतना बड़ा टर्म दिया गया था, ओके फाइन, तो अशरफुल मखलूकात का ओहदा दिया गया था, इतना बड़ा टाइटल, ये जानवरों को नहीं दिया गया, राइट? ये जिन्नात को नहीं दिया गया। अच्छा, फरिश्तों को क्यों नहीं दिया गया? फरिश्ते तो एंजल्स हैं, नाफरमानी का तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, सोच भी नहीं सकते वो लोग नाफरमानी की, अल्लाह की। हम तो नाशुक्र हैं ना। We every day we have food, every day we drink, every day we breathe, every day we meet our parents, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन टाइम कहाँ होता है शुक्र अदा करने का? नमाजें भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं जैसे सौदा कर रहे हैं अल्लाह के साथ, या अल्लाह मैं तेरे लिए नमाज पढ़ रहा हूँ 5 टाइम की, मुझे ये दे दे। आपको समझना होगा सबसे पहली चीज़ कि आप करना क्या चाहते हैं। What are you really wanted to do? What do you wish to do? And when you find this, what are the steps you're taking to do? Goals तो सबके पास होंगे। कोई richest man बनना चाहेगा, कोई entrepreneur बनना चाहेगा, somebody want to have a very settled life. What are you doing to do that? Reels देखने से नहीं मिलती सक्सेस। सक्सेस शुरू जब ही होगी जब आप अपने आप को जानेंगे, और आप अपने आप को जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेंटरशिप। एक मेंटोर होना चाहिए ज़िंदगी में जो नसीहत दे, जो बताएं कि है क्या आपके अंदर, जो आपकी गड़बड़ को समझ सकें और उसको सुधार सकें। गड़बड़ सबके अंदर होती है, राइट? होती है ना। हम कभी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम हंसना शुरू कर देते हैं। मतलब हम वी आर इमोशनल बीइंग्स, एंड व्हेन यू आर इमोशनल बीइंग्स यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। इतने ज़्यादा मैं हर दिन मिलता हूँ ऐसे बच्चों से जो इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने सफोकेटेड हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दे रियली गिव अप ऑन देयर लाइफ। ये सोल्यूशन नहीं होता ना चीज़ों का। Every problem has a very good solution, a very good approach, and a right way to do great things. Simple है ना यार। ये फेलियर को इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनाई क्यों है? फेलियर क्या है? क्या है फेलियर? बताएं, कोई बताएं मुझे फेलियर क्या है? लेसन, बढ़िया। और क्या है फेलियर को? क्या कहेंगे आप? स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। क्या बात है, बढ़िया। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि कोई चीज करने जा रहे हो, उसे नहीं सीख पाए, उसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए तो रोक दिया गया है। सीखो, समझो, आगे बढ़ोगे। अगर अब नहीं, अब करेंगे चीटिंग, अब करेंगे मैल प्रैक्टिसेस, अपने साथ कर रहे हो आप, किसी और के साथ नहीं कर रहे। आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे उनका लड़का, उनकी लड़की ये दिन देखें कि वो इतने मजबूर हो चुके। अच्छा एक बात बताएं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सिलेबस का टॉपिक हो, अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना। अब आप लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स में मज़ा आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स में गड़बड़ लगेगी। मुश्किल कुछ नहीं है हमारे लिए, है कुछ मुश्किल? कैन आई हियर कि कुछ मुश्किल है हमारे लिए? लाउडर। ग्रेट। सो वी डोंट हैव एनीथिंग डिफिकल्ट, वी कैन डू एवरीथिंग। यस और नो? लाउडर। So when we can do everything, when we know we can do everything, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि you should understand what you're doing. जब सब कर सकते हैं लेकिन कर क्या रहे हैं वो नहीं जानते। कर तो सब सकते हैं, ये बढ़िया है, ये क्लियर है, लेकिन करना क्या है इसकी क्लैरिटी कौन देगा? ये आप खुद देंगे। ये टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, ये सिलेबस नहीं देगा आपको।
सिलेबस उतना ही देगा जितना ज़रूरी है, आपको इतनी नॉलेज दें कि ये एज से आप नेक्स्ट एज में जा सकें, बस मार्क्स भी उतना ही देंगे। बट आप क्या करना चाहते हैं, वॉट आर यू वॉन्टिंग टू डू, वॉट आर यू विलिंग टू डू, और इसके लिए आपने क्या किया है अब तक। आप कहते हैं कि इलॉन मस्क क्या बढ़िया इंसान है, वाओ ग्रेट मैन। आप कहते हैं अंबानी जैसा बनना है, मतलब अंबानी देखें, लेवल देख रहे हैं अंबानी का। अंबानी हो तो बातों में कहते हैं ना, भाई तो अंबानी है, इतने बड़े ख्वाब देख रहा है। मैं कहता हूँ उनकी आपके अंदर इतनी टैलेंट, आपके अंदर इतना छुपा है अंदर, उसको ढूंढो, उसको तराशो, उसको सामने लाओ। टैलेंट सबके पास है। और एक बात याद रखो यार, कंपटीशन ना उस चीज़ में, अच्छाई में कंपटीशन करना है ठीक है, कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा दोस्त इतनी मेहनत नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप कंपटीशन कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। आप रिजल्ट्स पे कंपटीशन कर रहे हैं, बेकार है। आप बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जिन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम बना के हिंदुस्तान में गए हैं, वो एजुकेशन सिस्टम अपना बदल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू चेंज। आप अभी तक 10 साल पीछे हैं, जो आपके पास चेंजेस अब आ रहे हैं वो लोग 10 साल पहले कर चुके हैं। वो दे हैव एक्सपीरियंस कि एजुकेशन बच्चों की जिंदगियों में क्या इम्पैक्ट, क्या प्रॉब्लम्स, क्या सिचुएशंस ला रहा है, and they're changing it every day। चेंज आ रहा है उनके पास। और नाउ व्हाट दे आर डूइंग, रिसेंटली एक चीज़ आई, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में, मेरे को एग्जैक्टली वो स्टडी का नाम याद नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये स्टडी हुई थी। उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम, जो कंटेम्पररी एजुकेशन सिस्टम है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और ये सिस्टम जो आप हम सब इसके पार्ट हैं, वही सिस्टम है एग्जैक्टली सेम, जो शायद ब्रिटिश अपने टाइम पे बना के गया है, उसको ही आज तक हम फॉलो करे जा रहे हैं। तो आपकी एजुकेशन, एक बात बताएं, आप लोग इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं? वाई आर यू ऑल डूइंग इंजीनियरिंग? टू चेंज द वर्ल्ड। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है। तो कैसे चेंज करेंगे? बैकलॉग्स रख कर चेंज कैसे करेंगे? हाँ जी, इनोवेशंस। अच्छा बढ़िया, वेरी गुड। मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं डिग्री के लिए, ठीक है, आपकी एक एलिजिबिलिटी होती है ना आगे बढ़ने के लिए, 10th करेंगे तभी तो इंटर करेंगे। ये एलिजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो बात क्लियर है। अच्छा, आप लोग बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहे हैं, आप लोग के अंदर एक स्किल है, एक एंटरप्रेन्योरल स्किल है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया। बट मेन पर्पस तो कहीं ना कहीं ये है ना कि यू हैव अ डिग्री, आपके पास एक एलिजिबिलिटी हो कि आप आगे बढ़ सकें। सब इसी के पार्ट है, यही रेस में लगे हैं। मैं कहता हूँ आपसे, एलिजिबिलिटी निकल जाएगी, यू ऑल विल क्रैक योर एग्जाम्स इन द ग्रेटेस्ट वे। मेरी दुआ है आप सबके साथ। मैं इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में आज से शुरू करें। क्या करें कि ढूंढें, अपने अंदर जुस्तजू पैदा करें। सबसे बेहतरीन टीचर कौन है आपकी नज़र में? आसुस, बढ़िया। अच्छा, हाँ। क्या नाम कह रहे हैं? इलियास सर। रियाज सर, ओके। यार ये गलत कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। हाँ जी, जरीना मैडम। अच्छा जी, ठीक है, ये तो बेस्ट टीचर्स हो गए आपकी लाइफ के। अच्छा, और कोई है? कोई मिस्टेक्स? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी, पेरेंट्स, बढ़िया, सही है। हाँ जी, लाइफ इज बेस्ट टीचर, बढ़िया, सही है। तो और क्या हो सकता है? कौन है? अच्छा, मिरर है, ये भी सही है। अच्छा, द वन हु गिव्स यू नॉलेज, ओके, बढ़िया। अच्छा, और क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट टीचर कौन होंगे? एक चीज़ करें, अच्छा आपके घर पे हैं छोटे बच्चे हैं कोई? किसी के घर पे होंगे ब्रदर्स और सिस्टर्स, या रिलेटिव्स में होंगे, या आपकी सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे से मतलब बच्चे होंगे। आप उनको देखना, वो आपको लाइफ के बेस्ट लेसन सिखा सकते हैं। आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा, एक इन्फेंट हो गया, या जो 11 to 13 ईयर्स से पहले जो बच्चा है, वो अगर इंतकाल कर जाए तो वो कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? He didn't do anything?
अच्छा इसलिए चले जाएगा जब इतनी बड़ी बात कही है कि जन्नत वो बच्चा क्यों जाएगा, मतलब वो छोटा सा बच्चा है, दिमाग नहीं रहता, अच्छा मासूम है, अच्छा और क्या हो सकता है जी, सिनलेस, अच्छा जी सही है, तो झूठ तो वो भी बोलता है, समझ नहीं रहती, इनोसेंस है, अच्छा व्हाट एल्स कुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, थोड़ा करें ना, बॉयज़ के साइड से आंसर्स नहीं आ रहे, खवाती नहीं है क्या कॉलेज में, बताएं आप बताएं, व्हाट कुड बी द अदर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, पेरेंट्स, पढ़ना, अच्छा दुआ, ओके ओके, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इसलिए है, वाई वन चाइल्ड हु जस्ट गॉट एक्सपायर्ड डायरेक्टली गोज टू जन्ना इज जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज नॉट सो कॉन्शियस टू मेक द बेस्ट डिसीजंस इन देयर लाइफ्स, जो कह रहे हैं ना आप लोग इनोसेंस, मासूमियत, वो शऊर नहीं दिया गया है उन्हें कि वो कोई डिसीजन ले, कोई ऐसा स्टेप ले, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ उनसे सीखें, क्यों सीखें, क्योंकि वो मासूम है, द वे दे टेक, अच्छा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, दे टेक इट सो लाइट, सो मतलब उनको कुछ असर ही नहीं लगता, अच्छा ना हो गया ना कोई नहीं, ठीक है, आप परेशान होते रहेंगे, आपके अंदर मतलब गड़बड़ चल रही है, अरे अरे ये हो गया, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, उनके पास नहीं होती है प्रॉब्लम, वो मस्त होता है अपनी दुनिया में, ये चीज़ उनसे सीख पाएंगे आप, बहुत सारे लेसन्स नेचर एवरी डे आपको दे रहे हैं, आप जो टीचर्स के नाम कह रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, बट मैं कहता हूँ कि कभी देखें अपने अंदर एक आदत, यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ लर्निंग कि आसपास हो क्या रहा है, आपके अंदर एक रिसर्च की एबिलिटी होनी चाहिए और हर बच्चे के अंदर होती है, बस ये है आप लोग वक्त के साथ उसको छोड़ देते हैं और उसको मतलब यू नेवर फ्रेम योरसेल्फ फॉर इट, ऑलराइट, सो आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, हम इकिगाई द आर्ट ऑफ लिविंग में इसी तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीज़ें, इस तरीके से हम जा रहे हैं आगे, हमने पूरा सा एक सिस्टम बनाया है जहाँ पे एक बच्चा आता है जो अभी एक जर्नी Stop स्टार्ट, talking, please. Stop talking. बोरिंग लग रहा है, अच्छा मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं कई बच्चों से मिला हूँ, ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो शायद मेरा मजाक भी उड़ाते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं आपकी फ़िक्र करके आया हूँ यहाँ पे, मेरे को मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग मेरी बात सुने नहीं सुने, मुझे कुछ बदलने वाला नहीं है उससे कुछ, बट ये चीज़ ज़रूर है कि आप इस देश की उम्मीद हैं, आप इस देश को बदलने वाले लोग हैं, फ्यूचर आपके हाथ में है और ये मेरी फ़िक्र है, हमारी कौम के नौजवानों का मसला ये है ना, आप उनको मैरिजेज़ में लेके जाएं, वहाँ जहाँ खाना होगा, वहाँ जहाँ पे एन्जॉयमेंट होगा, वो बहुत अच्छे से रहेंगे, मज़ा आएगा, जब आप उनको बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे बदलें, आप कैसे कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, तो बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरी बात, कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और ये बातें मेरी ज़िंदगी बदलें और कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदलें जिन्होंने कुछ नहीं किया था लाइफ में एंड दे आर डूइंग ग्रेट एट देयर लाइफ्स, ठीक है, टू डू दिस आपको थोड़े से काम करने होंगे, सबसे पहले अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको शॉर्ट टर्म्स में ब्रेक कर दें, छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक कर दें, उनको हर दिन अचीव करें और उसको रिकॉर्ड करें, कहीं लिखें, लिखने की आदत पैदा करें, यू विल डू ग्रेट एट योर लाइफ, यू हैव टू राइट एवरी सिंगल थिंग, और आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, व्हाट हैव यू डन टुडे, एक काम ऐसा दिन में जिससे आपको खुशी हो, मोटिवेशन मिले, आइदर इट कुड बी गोइंग waking up early, offering 5 times of salah, or it could be anything else, but you have to maintain this every now and then कि every single day आप लिखें, अपने लिए लिखें, ताकि आप मेजर कर सकें ना कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, तो मेक दिस अ हैबिट। I think you need to fill those forms. You have to give your feedback also, students. So please find some time to give your feedback.
हाँ जी, यस.